सेबी की बोर्ड बैठक को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। आइए सीधा रुक करते हैं। The structure of this particular category are as follows. There will be requirement to send intimation to shareholders regarding open market buyback offer electronically. This is in addition to what used to be there from papers and newspapers and others means. Then open market buyback offer on stock exchange shall be completed in 66 working days. Working days has also been defined. As you know, these are the work days, not the calendar days. The requirement of separate window and display of the identity of the company on electronic screen as a purchaser is to be dispensed with. So it will be like available on the normal window, normal trading window, and not a separate trading window. There will be a mechanism in place to freeze the holdings of promoters and their associate at ISIN level during the period of buyback. Because the promoters cannot participate in buyback, so therefore there will be a mechanism to freeze the ISINs. There will be a requirement that buyback should not result in breach of minimum public shareholding requirement. Well, that is normally guided by the MPS regulations, so it will be followed in any case, is being followed in any case. But just to make it very clear, we are also introducing a cross-reference here for seeing that whenever buyback are undertaken, that MPS needs to be maintained. The interval between two buybacks of a company shall be in accordance with the interval as specified in the Companies Act 2013. Today that interval has been specified as 1 year based on present provisions of Companies Act. However, we are removing that specificity and rather linking it to as Companies Act provides, so that if in future, if there could be amendments, we don't have to again amend our regulations. An important change is with respect to appointment of merchant banker. Earlier, there were several activities for which merchant banker was required. It was mandatory. This is being removed. Now it will be optional at the discretion of the company for undertaking buyback of shares. Now, if the company decides not to appoint merchant banker, the activities undertaken by merchant bankers have been assigned to company compliance officer, statutory auditor, secretarial auditor, and stock exchanges. So there is a very clear table will be provided so that if any company doesn't want to engage a merchant banker, it is very clear that then in that case, who will do what in respect of the buyback. So there will be no difficulty also for the company to go ahead in case they want not to engage merchant banker. It will be up to them whether they want to do that or not. तो दोस्तों, जैसा कि आज मार्केट में आपने देखा कि चीज़ें जो है ज़्यादा बदलती हुई नज़र नहीं आई। न्यूज़ें तो पॉजिटिव थी, खबरें पॉजिटिव थी। अमेरिकी बाजारों की छुट्टी थी, लेकिन उसके बावजूद इंडियन मार्केट 200 पॉइंट का लगभग गैप डाउन देखने को मिला। लेकिन एक चीज़ आज बहुत पॉजिटिव इंडियन मार्केट की तरफ से आई है। देखिए, बाज़ार बंद होने के बाद FIS DIS के आंकड़े आए हैं और आंकड़े क्या कुछ बयां कर रहे हैं आप देख सकते हैं। ये एक अलग रणनीति आपके लिए हो सकती है। यहाँ से आप इस चीज़ को मान सकते हैं कि क्या FIS की एंट्री इंडियन मार्केट में अब चालू हो गई है। करीब 4,859 करोड़ की बहुत दिनों बाद ऐसी बाइंग देखने को मिली है कि DIS का आंकड़ा नेगेटिव में आए, FIS का आंकड़ा पॉजिटिव में आए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1159 करोड़ की बिकवाली DIS की तरफ से देखने को मिली है और यही चीज़ इंडियन मार्केट के लिए आने वाले दिनों में काफ़ी पॉजिटिव साबित हो सकती है। चीज़ें तो धीरे धीरे बदलती हुई नज़र आएगी, लेकिन यदि FIS की एंट्री इंडियन मार्केट में इस लेवल पे होती है तो आप मानिए कि इंडियन मार्केट के लिए ये काफ़ी पॉजिटिव खबर साबित हो सकती है और आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट में कई जगह पे FIS की ज़बरदस्त बाइंग भी दिखाई दे सकती है। तो देखना होगा
कि चीज़ें किस प्रकार से इंडियन मार्केट के लिए बदलेगी। लेकिन आने वाले दिनों में यदि FIIs की एंट्री और भी ज़बरदस्त तरीके से होती है, FIIs इंडियन मार्केट में जिन लेवलों पे अभी जो लेवल चल रहे हैं वहाँ पे थोड़ी सी भी बाइंग और करते हैं, यानी कि 1 लाख 2 लाख करोड़ के लगभग की बाइंग इंडियन मार्केट में आती है, क्योंकि आपने देखा कि मार्च के महीने में करीब 1.25 लाख करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग FIIs इंडियन मार्केट में करके गए थे। तो इतनी उससे आधी पर्दी जो है बाइंग भी इंडियन मार्केट से आती है। चीज़ें बदल जाएगी और इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी फिर देखने को मिल सकती है। तो देखना होगा कि किस प्रकार से इंडियन मार्केट सभी चीज़ों में बदलाव करता हुआ नज़र आएगा। FIIs की बाइंग इंडियन मार्केट में आती हुई नज़र आती है तो चीज़ें इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव होती हुई नज़र आएगी। आगे बात करें यदि रुपये की, तो रुपये में काफ़ी अच्छी मजबूती दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त जो है डोमिनेशन रुपये का देखने को मिलेगा। वर्ल्ड में देखें तो इंडियन मार्केट की जो करेंसी है काफ़ी ज़बरदस्त वीक थी। क्रूड ऑयल के भाव $80 के लगभग है, $70 के लगभग उससे नीचे आते हैं। तो इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी जो बाज़ार को काफ़ी ऊपर तक लेकर जा सकती है। देखना होगा आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट किस प्रकार से जो है डोमिनेंस दिखाता है। लेकिन यदि बाज़ार में 24,250 के लगभग का ब्रेकआउट आता है तो वहाँ से एक बड़ी रैली इंडियन मार्केट में दिखाई दे सकती है। फ़िलहाल आप देखोगे तो निफ्टी में करीब आज 150 पॉइंट की गिरावट दिखाई दी है। फिर से 24,000 के लगभग आया था बाज़ार, 23,900 के लगभग भी आया था, लेकिन वहाँ से एक ज़बरदस्त तेज़ी के हालात मार्केट की तरफ से बढ़ते हुए दिखाई दिए थे। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी 57,000 के लेवलों को होल्ड किए हुए हैं। 57,200 250 के अच्छे खासे सपोर्ट जोन है उसको देखते हुए बाज़ार में यदि 58,200 का लेवल पार होता है तो जल्द ही 60,000 के लेवल बैंक निफ्टी की तरफ से भी दिखाई दे सकते हैं। लेकिन 3 से 4 दिन बाज़ार में अमेरिकी बाज़ारों की 3 दिन छुट्टी है और सोमवार को शाम को जब बाज़ार खुलेंगे तो इंडियन मार्केट के हिसाब से 4 दिन ही जो अमेरिकी बाज़ारों की छुट्टी है। तो इसके बीच में यदि ट्रम्प के कुछ भी ऐसे नेगेटिव बयान आते हैं तो दिक्कतें फिर बढ़ती हुई नज़र आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।